Next topic is probability distribution. This is your exercise 13.4. Probability distribution means, although the topic is very easy because the previous probability you have to use, only you have to take care of this point. In case of playing card questions or boxes bag questions or urn जिसमें बॉल्स होती हैं डिफरेंट कलर की, टेक केयर ऑफ द वर्ड विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट. Question should be noted carefully whether it is a question of with replacement or without replacement. Sometimes it is not mentioned that with replacement or without. If it is not given clearly, then we will use without replacement. That point should be care taken. If it is not mentioned, you have to solve the question with or without, then we will take the without replacement. First definition is random variable. A random variable is a real valued function whose domain is the sample space of the random experiment. More than one random variable can be defined on the same sample space. मीन्स रैंडम वेरिएबल के जितने भी क्वेश्चंस होंगे इसमें हर एक्सरसाइज में सबसे पहले आपको रैंडम वेरिएबल ही निकालना है. तो जो उनके डोमेन्स होंगे वो रियल वैल्यूड फंक्शंस होंगे. लाइक आई कैन गिव एन एग्जांपल. आई हैव क्वेश्चन नंबर 2 ऑन एक्सरसाइज 13.4. All the few questions are in example also that you can study, but I am taking the question from the exercise, that is 13.4 exercise. A urn contains 2 red and 2 black balls. 2 balls are drawn at random. X represents the number of black balls. Then what are the possible value of x? Is x a random variables? ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है. Since a bag contains 5 red and 2 black ball, and 2 balls are drawn at randoms, following possibilities are there. First possibility is both balls are black. Second, both are not black, that is दोनों रेड हो जाएंगी. थर्ड, 1 black and 1 red. Let x denotes number of black balls. X is equal to 0 means no black ball. X is equal to 1 means 1 black 1 red. X is equal to 2 mean both are black balls. तो x की वैल्यू 0, 1, 2 is called random variable. This capital X is called a random variable. मैंने यहाँ पे लिखा more than one random variable can be defined on the same sample space. मीन्स मैं यहाँ पे ये भी कह सकता था कि number of 2 balls are drawn, and if x represent the number of red balls, then is x a random variable? आप कहेंगे yes, x की वैल्यू 0, 1, 2 हो सकती है. x की वैल्यू 0, 1 and 2. 0 means no red ball, 1 means 1 red 1 black, 2 means 2 red balls.
तो क्वेश्चन नंबर 3 भी कुछ ऐसा ही है। X represent the difference between number of head and number of tails obtained when a coin is tossed 6 times. I am taking question number 3. Coin is tossed 6 times and X represent the difference between number of head and number of tails. Capital X represent difference between number of heads and number of tails. मीन्स फर्स्ट केस में ये ले लेता हूं कि 6 हेड है और टेल 0 है, तो डिफरेंस 6 आ जाएगा। अगले केस में मैं 5 हेड ले लेता हूं और 1 टेल, डिफरेंस 4 आ जाएगा। नेक्स्ट में 4 हेड एंड 2 टेल्स, 2 डिफरेंस आ जाएगा। एक्स में 3 हेड एंड 3 टेल्स, एक्स में अब 2 4 तो एक ही बात है, लेकिन डिफरेंस ले रहे हैं तो आप यहाँ 2 ही कहेंगे, बिकॉज नेगेटिव वैल्यू विल नॉट बी कंसिडर्ड। बड़े में से छोटा, डिफरेंस का मतलब यही होता है, तो आगे वैल्यूज रिपीट होनी शुरू हो जाएंगी। इट मीन कैपिटल एक्स में हैव 0 2 4 0 2 4 एंड 6, ये रैंडम वेरिएबल्स आएंगे, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ हेड एंड नंबर ऑफ टेल का मतलब यह है कि अगर आप एक कॉइन को 6 बार थ्रो करेंगे तो 6 हेड आएंगे तो कोई टेल नहीं आएगा, 5 हेड होंगे तो 1 टेल होगा, 4 हेड है तो 2 टेल्स होंगे, 3 हेड है तो 3 टेल्स होंगे। इसलिए x की वैल्यू 0 1 2 4 6 आएंगे। इसी से रिलेटेड आपके पास 2 एग्जाम्पल्स भी हैं। एग्जाम्पल नंबर 22 एंड 23 आप खुद पढ़ना। एग्जाम्पल नंबर 22 एंड 23 NCERT बुक से खुद रीडिंग कर लेना। तो ये एक रैंडम वेरिएबल है, और रैंडम वेरिएबल हम हर क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे ये स्टेप्स, मीन्स इसकी प्रैक्टिस बीच बीच में भी हो जाएगी। बट अभी तो आपने सिर्फ ये फॉलो करना है कि व्हाट इज रैंडम वेरिएबल, इट इज ए रियल वैल्यू फंक्शन एंड whose domain is a sample space of the random experiments, and एक सैंपल पॉइंट्स पे एक से ज़्यादा रैंडम वेरिएबल आप ले सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट डेफिनेशन इज योर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। Probability distributions mean your number will be written in the table form. x, x1, x2, x3 ये रैंडम वेरिएबल्स हैं, क्योंकि कैपिटल X हम रैंडम वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं। P ऑफ x मीन्स ये प्रोबेबिलिटी x1 के ऊपर है, ये प्रोबेबिलिटी x2 के ऊपर है, ये प्रोबेबिलिटी x3 के ऊपर एंड सो ऑन। हम आंसर इसी शेप में छोड़ सकते हैं। सारों की प्रोबेबिलिटी ऐड करेंगे तो 1 आना चाहिए। फिर मीन का फार्मूला है, मीन का फार्मूला वही होता है FI/XI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI, जो डायरेक्ट मेथड आप मीन में करते थे। PI/XI डिवाइडेड बाय सिग्मा PI 1 होता है, मेंशन नहीं करते। फिर वेरिएंस का है PI/XI स्क्वायर माइनस PI/XI का होल स्क्वायर। मीन को हम E ऑफ x से रिप्रेजेंट करते हैं, ये E ऑफ x स्क्वायर माइनस E ऑफ x का होल स्क्वायर। वेर E ऑफ x स्क्वायर सिग्मा x स्क्वायर PI, ये स्टैंडर्ड डेविएशंस के ही फार्मूलेज होते हैं। सिर्फ FI की जगह PI आ गया। डिनोमिनेटर इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि सिग्मा PI 1 होता है, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज अंडर रूट ऑफ वेरिएंस होती है। आजकल रिलेटेड सिलेबस से आपका मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन का टॉपिक नहीं है, सिर्फ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तक के क्वेश्चंस हैं।
क्वेश्चन नंबर 1, 13.4 एक्सरसाइज, स्टेट वेदर विच आर द फॉलोइंग आर द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। इसमें आपने पहला चेक तो यही करना है कि ईच प्रोबेबिलिटी इज पॉजिटिव, पी ऑफ आई पॉजिटिव होना चाहिए ग्रेटर देन 0 एंड सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी शुड बी इक्वल टू 1 एंड ईच प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 एंड 1। मतलब 3 कंडीशन आप ध्यान में रख सकते हैं। फर्स्ट, ईच प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0। नंबर 2, each probability should lies between 0 and 1. Number 3, sum of all probabilities should be equal to 1. तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 13.4 में फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट में तो आप कहेंगे कि सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज मीन्स आप स्टेटमेंट टैली कर सकते हैं कि इन्होंने स्टेटमेंट्स ऐसे दिए हैं, कैपिटल एक्स की वैल्यू 0, 1, 2 ली है, पी ऑफ एक्स दे रखा है 0.4, 0.4 एंड 0.2। आप यहां कह सकते हैं कि फर्स्ट गिव्स द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स। तीनों कंडीशनें सेटिस्फाइड है, ईच ग्रेटर देन 0 है, हर एक 0 और 1 के बीच में लाई कर दिया, सबको ऐड करना तो 1 भी आ रहा है। इट मीन्स दिस इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, PD लिख रहा हूं, ऑफ ए रैंडम वेरिएबल x। बाकी के जो 3 ऑप्शंस हैं वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और रैंडम वेरिएबल नहीं है। सेकंड में एक प्रोबेबिलिटी नेगेटिव है, थर्ड में सम को ऐड करेंगे तो 1 नहीं आता, फोर्थ में भी सम को ऐड करने पे, सारी प्रोबेबिलिटीज को ऐड करने पे 1 नहीं आ रहा है। सेकंड और थर्ड सम मैंने करा दिए। फोर्थ सम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ नंबर ऑफ हेड इन 2 टॉसेस, number of tail in 3 tosses, number of head in 4 tosses। अब 2, 3, 4 3 क्वेश्चंस हैं, तो लेट अस मी डिस्कस ओनली द केस। मैं थर्ड केस डिस्कस कर लेता हूं, 4 वाला, क्योंकि 4 केसेस के जब आप सैंपल स्पेस लिखेंगे तो 4 हेड, 3 हेड, 1 टेल, इसके 4 केस होते हैं। फिर 2 हेड, 2 टेल्स, इसके 6 केसेस होते हैं। फिर 3 टेल्स, 1 हेड, इसके भी 4 केसेस होंगे। एंड ऑल द 4 टेल्स। अब लिखेंगे x डिनोट्स नंबर ऑफ हेड्स, इट मीन x की वैल्यू 0, 1, 2, 3 एंड 4। अब प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0 मीन्स 0 का मतलब कोई हेड नहीं है, इट मीन ऑल द 4 आर टेल्स, तो 1/16। प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 1 मीन्स एक हेड है और 3 टेल है, 4/16। प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 2 हेड एंड 2 टेल, 6/16। प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 3, 4/16। Probability at x is equal to 4, that is 1/16।
मैं इसमें आपको आसान तरीका भी बता देता हूँ, अगर जो आपको सैंपल स्पेस नहीं लिखना है। देखिए x इज इक्वल टू 0 मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द 4 टेल्स आएंगी। आप ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1 मीन एक हेड है और 3 टेल है। अब आपको ये तो पता है कि हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, टेल की 1/2, टेल की 1/2, 1/16 तो आएगा। अब इसकी जो अरेंजमेंट है वो अपने दिमाग में कर सकते हैं कि 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल परमुटेशन कॉम्बिनेशन से, क्योंकि t इज रिपीटेड 3 टाइम तो ये 4 आ जाएगा। ये रफ में कैलकुलेशन करनी है तो इंटू 4 कर देंगे, इसलिए 4/16। तो ऊपर वाला सैंपल स्पेस पे ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। x इज इक्वल 2 हेड एंड 2 टेल्स, इसमें भी यही है, 1/16 तो आएगा ही आएगा। लेकिन मैंने इसको एक्सप्लेन करने के लिए 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, इसलिए इसका आंसर 6/16 बन जाएगा। अब आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि x इज इक्वल टू 2 लिखना यहाँ x इज इक्वल 2 के साथ ही है। नीचे वाली ब्लैक पेन तो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, मतलब आप इसको इस तरीके से भी हैंडल कर सकते हैं। लेकिन एनी हाउ आपका आंसर अपना एक टेबुलर शेप में देना है। आप x की वैल्यू 0, 1, 2, 3 एंड 4 रख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ x 0 मीन्स 1/16, 1 मीन 4/16, 6/16, 4/16 and 1/16. This is your probability distributions. When the word probability distribution are there, your answer will be in this shape. क्लियर। वैसे मैंने 4 पॉइंट्स का आपको बताया कि अगर जो आपको बड़े बड़े सम सैंपल स्पेस के बगैर करने, स्पीड करना, तो माइंड में जाएगा। 2 हेड 2 टेल मीन 6 आएगा, 3 हेड 1 टेल्स मीन 4 आएगा। तो रिमेनिंग 2 पार्ट्स मैं नहीं ले रहा हूं, वो आप अपने आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, find the probability distribution of number of successes in 2 tosses of a die where the success is defined as number greater than 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ग्रेटर देन 4 मीन 2/6, दैट इज 1/3 आ जाएगी। आप लिख सकते हैं लेट x डिनोट्स नंबर ऑफ सक्सेस। तो x की वैल्यू 0, कोई सक्सेस नहीं है, 1 या 2, बिकॉज ए डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स। 2 टॉसेस ऑफ ए डाई है। तो प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0 मीन नो सक्सेस। तो नो सक्सेस का मतलब s बार हो जाएगा 2/3। तो ये 2/3 इंटू 2/3 2 बार आएगा, दैट इज 4/9। प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 1, एक सक्सेस है, तो 2/3 इंटू 1/3 इंटू 2 आएगा, क्योंकि 2 केस होंगे। क्योंकि ये बेसिकली इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड दिस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन सक्सेस एंड सक्सेस। इसलिए मैंने यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ 2/3 इंटू 1/3 किया। तो कहने का मतलब ये भी 4/9 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 मीन दोनों ही सक्सेस हैं। तो दोनों ही सक्सेस का मतलब 1/3 इंटू 1/3 1/9 आ जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जब आप इसको लिखेंगे x 0, 1 and 2,
प्रोबेबिलिटी ऑफ x 0 के ऊपर कितनी आई 4/9, 1 के ऊपर 4/9, 2 के ऊपर 1/9। मतलब सक्सेस एंड फेलियर इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन विद रिप्लेसमेंट वाले हैं, मींस इसमें विदाउट रिप्लेसमेंट से नहीं होते। मींस ये जो 0 वाला तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि दोनों ही आपके पास फेलियर्स हैं। एस बार का मतलब आप एफ भी लिख सकते हैं। इसी का बी पार्ट है, six appear on at least one die. Now success is 6 appear on at least one die. यहां पे आप x की वैल्यू 0 और 1 लेंगे, क्योंकि यहां 6 अपीयर ऑन एटलीस्ट वन डाई का मतलब है कि अगर हम यहां सक्सेस का सैंपल स्पेस बनाएंगे तो वो 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6, फिर 1-6, 2-6, क्लियर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो 11/36 आ जाएगी, और नेचुरली फेलियर की है एस बार की 25/36 आ जाएगी। इसका मतलब यहां से जो हमारा टेबल बनेगा, प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0 मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बार निकालना है, दैट इज 25/36। प्रोबेबिलिटी इज x इज इक्वल टू 1 मीन सक्सेस इज एटलीस्ट 1 मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एस आ जाएगी, दिस इज 11/36। तो आप यहां से इसका ग्राफ इस टाइप से बनेगा, x इज इक्वल टू 0 एंड 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ x 0 के ऊपर 25/36 एंड 1 के ऊपर 11/36। क्योंकि क्वेश्चन है 6 सक्सेस इज 6 अपीयर ऑन एटलीस्ट वन डाई, कोई मुश्किल नहीं है। x डिनोट्स द रैंडम वेरिएबल्स, x की वैल्यू 0 और 1 लेंगे, क्योंकि बेसिकली जो डाई थ्रो करी है, 2 पेयर ऑफ डाई एक ही बार थ्रो किया है, यहां पे भी पेयर ऑफ डाई एक ही बार थ्रो किया था। तो यहां 2 केस हमने सक्सेस और फेलियर बना के कर दिया, वहां 2 नहीं बन सकते थे क्योंकि दोनों को कंपेयर करना था। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5. From a lot of 30 bulbs which include 66 defective bulbs, means जो बल्ब्स का लॉट है 24 तो इसमें ठीक है, 6 डिफेक्टिव हैं। ये डिफेक्टिव है, ये गुड्स बल्ब है, क्योंकि विच इंक्लूड करके लिखा हुआ है। 4 bulbs are drawn at random with replacement है, with replacement। Find the probability distribution of number of defective bulbs. X denotes number of defective bulbs. The value of x is equal to 0, क्योंकि 4 बल्ब्स निकालने तो यही आएगा 0, 1, 2, 3, 4। Now probability of defective bulbs is 6/30, 1/5, and probability of non-defective bulbs 1 minus 1/5 is 4/5. Probability at x is equal to 0 means कोई भी बल्ब
डिफेक्टिव नहीं है। इट मीन चारों बल्ब नॉन डिफेक्टिव हैं। इट मीन 4/5 रेज टू पावर 4। मीन्स 256 अपॉन 625। x इज इक्वल टू 1 मीन्स एक डिफेक्टिव है और 3 नॉन डिफेक्टिव हैं। डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी 1/5 है और इसकी 4/5 रेज टू पावर 3। बट मैंने पहले भी कहा था कि टोटल बल्ब्स कितने हैं, 4। 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, सिंप्लीफाई करके 4 आएगा। इसका मतलब ये सारी टर्म 4 से मल्टीप्लाइड होंगी, क्योंकि देखिए DNN करके घूमेगा। जैसे DNN है तो आपका केस ND भी आ सकता है, NND भी आ सकता है। वो सारे लिखने की बजाय ये मेथड लगाया करो। तो आंसर लगभग यहां से भी सेम ही आएगा, 256 अपॉन 625। प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 2। इसमें 2 डिफेक्टिव हैं, 2 नॉन डिफेक्टिव हैं, तो ये 6 आ जाएगा। वैसे तो आप 6 सीधा ना भी लिखें, ये भी लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल बाय 2। फिर आप लिख सकते हैं 1/5 का होल स्क्वायर इंटू 4/5 का होल स्क्वायर। तो 16 इंटू 6 अपॉन 625, ये 96 अपॉन 625 आ जाएगा, क्योंकि इसको 6 आएगा सिंप्लीफाई करके। प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 3 मीन्स 3 डिफेक्टिव हैं और एक नॉन डिफेक्टिव है, वही 4 के साथ आएगा कि 1/5 रेज टू पावर 3 इंटू 4/5, दैट इज 16 डिवाइडेड बाय 625। Probability at x is equal to 4 means all the bulbs are defective. In this case, answer is 1/625. अब यहां से टेबल तो बनाना ही है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आप बिना टेबल के आंसर नहीं दे सकते। x is equal to 0, 1, 2, 3 and 4. 0, 1, 2, 3 and 4. Probability of x 256, 96, 16, 1, सबको ऐड करेंगे 1 आना चाहिए। सम लेंथी हैं लेकिन इजी हैं, ये बात ध्यान में रख लेना। क्वेश्चन थोड़े आपको फील होंगे कि लेंथी हैं, बट मुश्किल नहीं है। सेवन, a coin is biased so that the head is 3 times as likely to occur as tail. If a coin is tossed twice, तो यहां से बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड जो दिया हुआ है वो 3/4 है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज 1/4। ये बात ध्यान में रखना, 3 times as likely as to occur. X denotes number of tails. Value of x is 0, 1 and 2. Probability at x is equal to 0, at x is equal to 1. जब तक आप x is equal to 0 मीन्स कोई भी टेल नहीं है, तो इसका मतलब दोनों हेड हैं। इसका मतलब आंसर इज 9/16। यहां से हेड और टेल है। मैंने कहा था कि आप वही पॉइंट भी लगा सकते हैं 2 फैक्टोरियल,
जो मैंने पहले बताया था कि एच ओ टी है, कोई रिपीट तो कर ही नहीं रहा। तो 2 इंटू 3/4 इंटू 1/4 दैट इज 6/16 मीन्स दोनों हेड हैं, दोनों टेल हैं। एक्स इज टू मीन दोनों टेल हैं। तो 1/4 इंटू 1/4 इज 1/16। नाउ रिप्रेजेंट दिस इन योर डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स, वो आप कर लेना। आंसर्स आप इसमें जरूर देंगे, अदरवाइज यू मे लूज योर 1 या हाफ मार्क्स। 9/16, 6/16, 1 ऐड करके देख लेना चाहिए, हर केसेज में 1 भी आता है। क्वेश्चन नंबर 8, a random variables has the following distributions। अब कैपिटल X आपको दिया हुआ है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 और इनसे रिलेटेड प्रोबेबिलिटीज आपको दी हुई हैं 0 के, 2 के, 3 के, 2 के 2 बार, देन 3 के, देन k स्क्वायर, देन 2k स्क्वायर, देन 7k स्क्वायर प्लस k। भाई सिंस पहला स्टेप तो आप यही लगा लो, सिग्मा पी आई इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाई 3 + 4 5 2 7 और 1 8 और दिस 9k प्लस 10k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाई 10k स्क्वायर प्लस 9k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। k प्लस 10 इंटू 10k, k कैन नॉट बी इक्वल टू -10, therefore k is equal to 1/10। पहला पार्ट तो यही था कि डिटरमाइन k, डिटरमाइन k, तो k की वैल्यू तो 1/10 आ गई। पहला आंसर तो आपका आ गया। दूसरा आंसर, प्रोबेबिलिटी कैपिटल X लेस देन 3। अब लेस देन 3 में इसका मतलब प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 2। ये 0 दी हुई है, ये k दी हुई है और ये 2k, दैट इज 3k एंड k की वैल्यू 1/10, आंसर इज 3/10। थर्ड पार्ट का आंसर है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज greater than 6, it mean probability at x is equal to 7 लेंगे, which is 7k square plus k, that is 7/100 plus 10/100, that is 17/100। फोर्थ केस है probability x lies between 0 and 3, तो 8x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा और 8x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। दैट इज योर 3k, आंसर इज 3/10। यहाँ देख देख के चलते रहिए, एकदम आंसर आएगा। क्वेश्चंस कोई मुश्किल नहीं है। दिस इज एक्चुअली योर क्वेश्चन नंबर 8। Question number 9. Random variable x has the probability distributions where k is some number
स्टेटमेंट दे रखी है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के 2k 3k 0। if x is equal to 2, if capital X is equal to 1, पहला पॉइंट डिटरमिन k मीन्स फाइंड k, तो वही सिग्मा पी आई इज 1, 6k इज इक्वल टू 1, k इज 1/6। ये पहला आंसर है। अगले केसेस में 3 अलग अलग केस दे रखे हैं। फिर दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इज लेस देन 2। अब लेस देन 2 में तो प्रोबेबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू 0 ले लेंगे, एक 1 ले लेंगे, दोनों की वैल्यू 3k आ जाएगी, तो 3/6 1/2 आंसर आ जाएगा। x लेस देन एंड इज इक्वल टू 2, अब इसमें 0 +1 भी ले लेंगे, +2 भी ले लेंगे, सबको ऐड करेंगे तो 6k आ जाएगा। 6/6 आंसर इज 1। नेक्स्ट x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2। अब x इज इक्वल टू 2 ले लेंगे एंड सो ऑन, बाकी सब भी तो 0 ही है। 3k 3/6 1/2। So this is your question number 9 that I have covered. Next,